من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا ينال الله دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا بدر اسلام سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو پوری دنیا کا خالق و مالک مربی پالنہار ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے بیکار لاچار بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یعنی صراط المستقیم پر چلانے کے لیے اس دنیا فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 نبی اور پیغمبر مبعوث فرمائے یہ اسلامی تہوار ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اسلامی تہوار دو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ انہیں کے ناموں سے ہم اور آپ جانتے ہیں واقف ہیں یہ اسلام کا تہوار ہے اسلامی تہوار دوسرا تہوار ہے عید الفطر ہم اور آپ 2 مہینہ 10 دن 15 دن پہلے ہم ادا کر چکے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ جسے ہم قربانی کے لقبوں سے پکارتے ہیں برادر اسلام آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے وہ عظیم دن وہ بہتر دن جس میں انسان اس میں مخلوقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتے تھے اسی کا نام قربانی اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے قربانی کسے کہتے ہیں ہم اور آپ بتا لاتے ہیں کاٹ دیتے ہیں اس کی گوشت کھا لیتے ہیں اسی کا نام قربانی نہیں ہے بکرا لانا کاٹ کے کھا لینا بانٹ دینا کھلا دینا اسی کا نام قربانی نہیں ہے قربانی اخلاص نیت تقوی اگر آپ کے دل کے اندر اخلاص ہے آپ کے دل کے اندر تقوی ہے اگر آپ 10,000 کا بکرا لاتے ہیں 1,00,000 کا بکرا لاتے ہیں 2,00,000 کا بکرا لاتے ہیں اور اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں اگر آپ کے دل کے اندر خالص نہیں ہے آپ کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے تو آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اصل جو مقصد ہے قربانی کا تقوی انسان کے دل کے اندر تقوی ضروری ہے اخلاص ضروری ہے خالص ضروری ہے یہ نہیں کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہو جائے گھمنڈ ہو جائے کہ میں 1,00,000 کا
बकरा लाया हूँ, 2 लाख का लाया हूँ, 10,000 का बकरा लाया हूँ, ऐसी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। बुखारी की पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर अमल सही है, आपका अमल है तो नियत भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। अगर अमल नहीं है और नियत है तो कोई जरूरी नहीं, बेकार है। ला यनाल अल्लाहु लुहु मुहु दिमाउहा वलाकि दिमाउहा, ला यनाल अल्लाहु ला यनाल अल्लाह लुहु ला यनाल अल्लाह लुहु मिनहु दिमाउ वलाकि यनालु तक़वा मिनहु। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी गोश्त, खून, चमड़ा नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है? तुम्हारे दिल के अंदर जो तक़वा होता है वो पहुंचता है। तुम्हारे दिल के अंदर जो बात होती है वो पहुंचता है। ना गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, ना उस बकरे का चमड़ा पहुंचता है। क्या पहुंचता है? तक़वा। तक़वा किसे कहते हैं? डरना, खौफ, उसका नाम तक़वा। और हम और आप बकरा लाते हैं 1 लाख, 10,000, 20,000, 30,000, तो आप खुद सोचिए कि हम 10-20 हजार का बकरा किस लिए लाते हैं? आखिर वजह क्या है? इसका मकसद क्या है जो हम बकरा लाते हैं? कहा कर खा लेना, यही मकसद है। बहुत सारे लोग सिर्फ खाने के लिए लाते हैं, खिलाने के लिए लाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, असल जो मकसद है, असल जो तरीका है, हम और आप उस पर अमल नहीं करते। हम और आप ये कह रहे हैं हमारा बेटा उम्र से आ रहा है, हमारे दिल के अंदर ये नियत पहले से है कि हम पहली को कुर्बानी करेंगे, और आप भी बदल जाते हैं, नहीं हम तीसरी को करेंगे। जब हर जगह खा पी कर आ जाएंगे तब अपना लाश में करेंगे। ये क्या मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, ये क्या है? खाने के लिए कुर्बानी की जाती है। खाओ खिलाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी सुन्नत मुबारका अल्लाह के रसूल का। अल्लाह के रसूल ने इस्तिताअत जो रखता है कुर्बानी करने का, जिसके पास माल है, उसके पास ताकत है, वो कुर्बानी नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलन युज़हि फला यहदुर मुसल्लाना। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, गौर करने इस हदीस पर। अल्लाह के रसूल का इरशाद, मन वजद साअतन लिज़हिया फला युज़हि फलन युज़हि, मन वजद साअतन, यानी जो आदमी, जो शख्स, जो इंसान कुर्बानी करने का इस्तिताअत रखता है, कुर्बानी करने की ताकत रखता है, वो कुर्बानी नहीं करता है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे इंसान को अपनी ईदगाह में आने से मना कर दिया। ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे ईदगाह में ना आए। प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, हम साल भर खाते हैं, पीते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है, पर एक सुन्नत को अदा करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। सुन्नत इब्राहिम को अदा करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। आखिर क्यों? वजह क्या है? हमें आपको मालूम है वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे और आपके अंदर इखलास नहीं है, हमारे और आपके अंदर तक़वा नहीं है, हमारे और आपके अंदर ईमान नहीं है। एक साल पर एक त्योहार आता है, उसका भी हम हक अदा नहीं कर पाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ऐसे इंसानों को अपनी ईदगाह में आने से मना कर दिया, तुम मेरे ईदगाह में मत आओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल अगर लिहाजा जो आदमी, जो शख्स, जो इंसान कुर्बानी करने का इस्तिताअत रखता है, उसे जरूरी करना, उसे करना जरूरी है, वो आदमी करे। उसके बाद अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास इन्नी अला कुल्ली आलि बैतिन फी कुल्ली आमिन अज़हिया। बेशक हर घर वालों पर हर साल एक कुर्बानी जरूरी है। हर घर वालों पर हर साल एक कुर्बानी जरूरी है। फर्ज नहीं है कि भाई फर्ज, अगर आपके पास इस्तिताअत है, आपके पास ताकत है, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम का नाम सुकून, शांति है। इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता है, हम आप खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। अगर हमारे पास इस्तिताअत है तो करने में क्या होता है? 10,000 20,000
कुर्बानी की हम हक अदा नहीं कर पा रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो सुन्नत मुबारका है, इसका हम हक अदा नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अजीज साथियों, एक बात और है कि जो 4 किस्म के जानवर इस्लाम के अंदर जायज नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हो। वो 4 किस्म के जानवर कौन से? पहला जानवर जो अंधा हो, इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी कि आप इसकी कुर्बानी करो। अगर आपको कुर्बानी करना है, आपको इस्तेताअत है, तो आप तंदुरुस्त बकरा कीजिए। अगर आपको लाना ही है तो आप क्यों ना अच्छा बकरा लाए, क्यों काना लेकर आए। इस्लाम के अंदर अंधा बच्चा जायज नहीं, मगर कुर्बानी नहीं कर सकते हो उसका। दूसरा बच्चा कौन है? लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, वाजे हो, उसकी कुर्बानी इस्लाम के अंदर दुरुस्त नहीं। तीसरा बच्चा कौन है? जो बीमार हो, उसकी बीमारी पर जाहिर हो, इसकी भी कुर्बानी इस्लाम के अंदर जायज है। और चौथा बकरा कौन है? चौथा बकरा यह है कि जो कमजोर हो, उसके जिस्म में गुर्दा ही ना हो, दुबला पतला, हड्डी दिखाई दे, ऐसी कुर्बानी इस्लाम के अंदर अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, तुम ऐसी कुर्बानी मत करो। अगर भाई तुम्हारे पास इस्तेताअत है तो अच्छा बकरा कीजिए, अगर नहीं है, आपकी लाने की हैसियत नहीं है, तो आप बकरा मत कीजिए। पर ऐसा बकरा जो अल्लाह के रसूल ने जिससे मना किया, वैसा बकरा आप मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर तीसरा बात, जो अय्याम है कुर्बानी करने का, 4 दिन, इस्लाम का 4 दिन है उसका अय्याम। ईद के दिन, उसके बाद 3 दिन, 3 रोज और 8, 10, 11, 12, 13 तक कुर्बानी कर सकते हैं। ये यौम तशरीक कहा जाता है, इसे यौम तशरीक कहा जाता है। हम और आप तो कुर्बानी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहु ज़बह लिग़ैरिल्लाह। अगर कोई आदमी, कोई शख्स, कोई इंसान, अल्लाह के रसूल ने, अगर कोई आदमी गैरुल्लाह के लिए जानवर जमा करता, अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत भेजी, लअनल्लाहु ज़बह लिग़ैरिल्लाह। लानत है उस आदमी पर, लानत है उस शख्स, उस इंसान पर जिसने गैरुल्लाह के लिए जानवर जमा किया। हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के नाम से कुर्बान करें। ये नहीं कि गैरुल्लाह, भला बाबा